Recording in progress. Good morning, children. So today we are going to start a new chapter. Name of the chapter is Kingdom Planting or Plant Kingdom. Plant Kingdom was one of the oldest kingdom which have been defined by like Aristotle also defined what are plants, and he further classified plants into some types like herbs, shrubs, and trees and all. Okay. And then later on, many other scientists they continue to define the organisms into two categories, that is animals and plants. However, even today, number of children will not believe that the butterfly is an animal or a fish is an animal and all. According to them, they are something different, and human beings are also not animals. But scientifically, all those organisms which do not have cell wall and they are multicellular, they are heterotrophic, they are what do you call various type of sensory organs and all, they all are called plants. So scientifically, plant की definition very sorry animals. So scientifically animals की definition बिल्कुल clear है. हम plants की बात कर रहे हैं. ठीक है. So plant kingdom was one of the oldest kingdom which was defined by the various scientists or various people in fact. ठीक है. However, in due course of time, the definitions of plant is being changed. The Carolus Linnaeus was one of the first scientists who have defined the plants in a very scientific manner. And he said, or according to him, plants are those which have got cell wall. Again, plants are those which are got cell wall. So according to that definition, even the prokaryote organisms, because they had cell wall fused with the cell membrane and form a cell coat. So वो भी हो गए peptidoglycan का बना हुआ. Fungi, they also had cell wall. They were also included here. And the other plants, the cell wall is made up of chitin or cellulose or hemicellulose or lignin or pectin or suberin, not of chitin. Then it is called plant. So plant kingdom's definition has changed over a period of time. सबसे पहले all those organisms which had cell wall were kept together by Carolus Linnaeus in kingdom Plantae. However, when what do you call Ernest Haeckel seen that fungi are having no characters which are significantly similar to that of the plant, except the presence of a cell wall. But the cell wall material is different. In fungi, the cell wall is made up of chitin, which is generally found in animals. Moreover, they are heterotrophic, and there are no other similar properties that are found in the plant. Their vacuoles are not very large, rather as in case of plants and all. So उन्होंने कहा कि why what is the need or what is the necessity or what is the thing which makes us forced to keep the fungi to plant kingdom. So he separated fungi from the plant kingdom and placed them in a new kingdom. ठीक है. So ये kingdom fungi separate हो गया, then protists were separated and then the monorans were separated. So this is how the now kingdom Plantae include category of organisms which have got cell wall made up of cellulose. They all have chloroplast or other type of plastids. Again, the vacuoles are there which are generally large, and many other properties are there which make them called as plants. Let us see what is there in the books. So ये NCERT book Kingdom Plantae. क्या कह रहा है? In the previous chapter, you looked at broad classification living organism under the system of proposed by R.H. Whitaker. So Whitaker का 5 kingdom classification, ठीक है? Wherein it suggested 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. In this chapter, we shall study in detail about the plant kingdom. We must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over a period of time. पहले हमने किनको कहा था प्लांट जिनमें सेल वॉल मिल रहा है. Fungi and the members of Monera and Protista have having cell wall and now excluded from the plant kingdom. Initially, only one criteria was considered to be called as plant was cell wall.
Such a classification which is narrow, which is based only on one or two characteristics, such classification is called artificial classification. It is given down. ठीक है? Artificial classification which is based only on one or few characteristics, which are often misleading. देख लो आप, in fungi cell wall was present, but the cell wall was of chitin. They are not autotrophic, rather they are heterotrophic. Many of them are parasite, many are saprophytic. ठीक है? फंगाई के को छोड़ दीजिए, आप प्लांटी में मोनोरेंस में ले लीजिए, है ना? All the monorems have got cell wall, but their cell wall is made up of peptidoglycan. They are unicellular. They may be autotrophic or they may be heterotrophic. They got mesosome. No other cell organelle is present. तो कहाँ से similarity है plants के साथ? What makes us to force to keep the monorems into plant kingdom? And that is why they are also been changed separately given into kingdom Monera and then kingdom Protista. So that is how we are classified. Okay. Now in today we got planting in which all the multicellular heterotrophic organisms in which the cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, lectin, pectin, etc. are there. Okay. उनको हमने plant में डाला and they got some type of plastids. Plastids mainly chloroplast, then chromo or leucoplast may be there. Vehicles are generally large and fixed body shape and all. So the cyanobacteria that are referred as the blue-green algae are not algae now. पहले हमने इनको algae कह दिया था और वो algae तो कौन से होते हैं? तो plant kingdom के होते हैं. यहाँ ये algae जो है they are no more plant kingdom. In this chapter we shall describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm under planting. तो किनको करेंगे हम? Algae को, bryophyte को, pteridophyte को, gymnosperm को, angiosperm. These names we already studied in class 9, but they were only for the namesake. Apart that, let us look at the classification within the angiosperm to understand some of the concern of that influence the classification system. The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number, shape of leaves, etc. etc. So it was often misleading था. It used to lead to some type of confusion. Okay, particular organ had all other characteristics similar to that of the plant or not similar to that of plant. They were kept wrongly in some categories. So the structure, the system by the they were based on mainly on the vegetative characters of the androecium, that is system given by the Linnaeus. So ये further classification कर देता है उनका, है ना? चलिए यहाँ पढ़ते हैं. Such a system which is having limited number of characteristics are called artificial, and they are separated from close. They separated the closely related species. They were based on only on few characteristics. Based on only few characteristics. Few characteristics तो बहुत गलतियां करते हैं. जैसे हमने कहा कि all the mammals are those which give birth to the young one. फिर duckbill platypus, cicadina, उसको आप mammal नहीं कह सकते. लेकिन आप कहें कि all the mammals are having 4-chambered heart. तो फिर crocodile, alligator, they also got 4-chambered heart, and the birds also got 4-chambered heart. तो ये तो गड़बड़ हो जाता है. क्लासिफिकेशन में अगर हम ऐसे कुछ करने लग जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे और कहें कि नो ये नहीं तो वो नहीं, तो फिर तो गड़बड़ है. So we had to have a broad perspective, and from the broad perspective, maximum characters are shared by which category accordingly we will name them. Okay, so this is now. That was the artificial classification on only one, in which only few characteristics, based on a few characteristics, they were based. तो उसको हमने artificial में दिया था. अब उसकी जगह हम क्या natural है. Also the artificial system gave equal weightage to the vegetative and sexual character, which is not acceptable. जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो तो चेंज हो सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना? सेक्सुअल कैरेक्टर आर मोर स्टेबल, है ना? तो ये देखिए एक्सेप्टेबल सिंस दे वर वेजिटेटिव आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. तो सन वो चाइना रोज अभी तक लाल फ्लावर दे रहा था, फिर आपको दिखा अरे ये तो येलो देने लग गया, और फिर अरे ये तो व्हाइट भी चाइना रोज आ गया, अरे ये तो 5 की जगह 15 पेटल वाला आ गया, अरे ये तो 25 पेटल वाला आ गया. ये मॉर्फोलॉजिकल अब आप सोचो कि पेटल्स के नंबर के हिसाब से आप क्लासिफाई करने लगते तो यू वुड हैव क्लासिफाइड द 5 पेटल चाइना रोज एज वन स्पीशीज,
15 petals is another species, red China rose is one species, white China rose is another species, yellow China rose is another species. Rose को पता नहीं कितने कर देते हैं. Now rose has so many different colors, size, shapes, etc. etc. So morphological characters must be given least importance. अगर हम उनको ज़्यादा importance देने लग जाएं, गड़बड़ हो जाएगा समय के साथ. Against which क्या है हम natural लिखते हैं. As against this natural classification system, natural में क्या है? फिर natural में natural होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. Natural मतलब जिसमें maximum characters को include किया. Developed which was based on natural affinities among the organisms to consider not only the external but also the internal feature. इसके अंदर तो हम external, internal सबको include करें. है ना. लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी ये बता रहे हैं कैसे कैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल के लेवल पे क्या है इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी फाइटोकेमिस्ट्री. ना ये वर्ड तो आपने सुने ही नहीं है. एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? नेचुरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस को स्टडी करने को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्टेजेस की हो रही है. फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? फाइटो व्हाट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर प्लांट. ठीक है. द वेरियस टाइप ऑफ chemical structure, chemical reaction products, etc. Oil, other type of resins, or other type of substances which are produced by the plant. They all will be in the phytochemistry. Such a classification is for flowering plants was given by George Bentham or Joseph Dalton Hooker, and it is commonly known as Bentham and Hooker's classification. Bentham and Hooker's classification. So plant kingdom is further classified on the basis of the characteristics or the points described by Bentham and Hooker. चलिए कुछ नए terms और है. Phylogenetic मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था in the previous chapter. Phylogenetic classification which is based on the evolutionary relationship कि कौन किससे पैदा हुआ. ठीक है. अब ये नया है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये कैसा क्लासिफिकेशन है? शादी करने के लिए जब जोड़ा मिला रहे होते हैं ना वो बोले 36 के 36 गुण मिल गए या 12 मिल गए या 10 मिल गए 5 मिल गए. हमने उन गुणों को कुछ कैरेक्टर्स दे दिए, पॉइंट्स दे दिए. इफ यू अप्लाई फॉर अ वीजा सो वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री हो ना जर्मनी के लिए या अमेरिका के लिए H1 वीजा अप्लाई करते हैं पूरा. H1 वीजा और सो फॉर दैट देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया. क्या है कि आपका एजुकेशनल लेवल क्या है. और एजुकेशन के हिसाब से प्राइमरी लेवल 1 पॉइंट, सेकेंडरी लेवल अनदर पॉइंट, मिडिल हो सकता है, सीनियर सेकेंडरी लेवल अनदर पॉइंट, देन ग्रेजुएट अनदर पॉइंट, देन पोस्ट ग्रेजुएट अनदर पॉइंट, then experience another point. एक्सपीरियंस भी कितने कितने सालों के हिसाब से 2 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस. तो यू कीप गेटिंग पॉइंट. तो सपोज अ पर्सन is post graduate and he has got 10 years experiment. तो ही प्राइमरी का भी मार्क्स मिल गया, उसको सेकेंडरी का भी मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया. एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 साल वाला भी आया, 3 साल वाला भी आया, 5 साल वाला भी आया. So he will be having maximum points. Whereas the person who is primary, तो उसको इसका 1 पॉइंट मिला ये नहीं. एक्सपीरियंस का मान लो 2 साल का तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे. So this is how. Then additionally कोई स्पोर्ट्स का है या कुछ और चीज का है. लैंग्वेज ऐसा नहीं वो तो कुछ और. हाँ तो लैंग्वेज के पॉइंट्स भी जो है into whichever country you are going, if you know that country's language or not, how many other languages you know, international languages, so they are also considered. Okay? And many other points are considered. Financial status will be considered and your attitude in the school. तो आपको पूरा एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा वो, तो उनके सबके पॉइंट्स होते हैं. Similarly, we are giving points to the organism. कैसे देंगे? एक सेल है, सेल वॉल है कि नहीं है? सेल वॉल है तो 1 पॉइंट, नहीं है तो 0 पॉइंट. सेल मेम्ब्रेन तो सभी में होती है, उसको पूछेंगे नहीं.
Then nucleus present 1 point, absent 0 point. Then mitochondria present 1 point, absent 0 point. Golgi body present 1 point, not present 0 point. ऐसे एक एक characters को आप लेते चलिए. Unicellular 1 point, multicellular नहीं, unicellular 0 point, multicellular 1 point. फिर tissues are there तो 1 point नहीं है तो 0 point. फिर organs है तो 1 point नहीं है तो 0 point. So the organism with the maximum character will be the most advanced, most developed. Classification बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा classification. हम ह्यूमन बीइंग को क्या क्या चीजों का मिल जाएगा. वी विल हैव सेल वॉल नहीं है 0 पॉइंट, चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए ही नहीं, हटाओ दी. न्यूक्लियस है 1 पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी 1 है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, दिस सोम है, दैट सोम है, करते करते खूब सारे. फिर टिश्यू हाँ है, ऑर्गन है, फिर सिस्टम वो भी है, फिर की अच्छा मल्टी सेलुलर बॉडी हाँ वो भी है, ठीक है. तो ऑर्गन सिस्टम वो भी है वेरी वेरी डेवलप्ड. सेंसरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस दैट वो ये सब कुछ करते जाए. इक्का दुक्का करेक्टर नहीं होंगे, बाकी सब कुछ होंगे, तो भी ह्यूमन बीइंग विल ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट पोजीशन. अब आपने व्हेल को क्लासिफाई कर या आपने डॉल्फिन को क्लासिफाई कर, तो डॉल्फिन आपसे किस लेवल में पीछे रह जाएगी बताओ. क्या डॉल्फिन में सेल मेम्ब्रेन है नहीं, सेल वॉल है नहीं है, सेल मेम्ब्रेन तो कोई पॉइंट ही नहीं रखा. न्यूक्लियस हम में भी प्रेजेंट है, उसमें भी है. अरे आप कोई कार खरीदना चाहते हैं या कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो वहाँ कंपेयर का ऑप्शन आता है, आप चूज कर लो एंड कंपेयर कर लो ऑनलाइन इफ यू चूज. सो वो सब कुछ कंपेयर करा जाता है, सब प्रोसेसर, क्लॉक स्पीड, ठीक है, रैम, और देन जैसे इंटरनल मेमोरी, एंड देन कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, फ्लैश इज देयर और नॉट, आगे का फ्लैश, पीछे का फ्लैश, है ना. फिर ये सारे एक एक पॉइंट था. अब वो पॉइंट के बेस पर आप देखते हैं यार ये वाला लूंगे, ये वाला, अरे ये वाला यार ये तो 50,000 का, ये तो मेरे को सिर्फ 12,000 में वो सारे पॉइंट दे रहा है. इक्का दुक्का चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी है. 12,000 को तो मैं गुस्से में 3 बार तोड़ दूंगा तब भी मेरे पास मोबाइल रहेंगे. 50,000 का एक बार तोड़ दूंगा तो मेरे को वापस से पापा से मिन्नतें करनी पड़ेगी. डूब गया तब बट 12,000 ज्यादा ही शौक आ रहा था, एप्पल की पर्ची चिपका लेना ऊपर. एप्पल तो एप्पल ही, उसका उसका ओएस तो बिल्कुल डिफरेंट है. चलिए ये तो छोड़िए. हमारे कहने का मतलब क्या है कि आप एक एक पॉइंट पे कंपैरिजन करते हैं. बहुत सारी कारें आ गई बाजार में, अब यू वांट टू बाय 5-सीटर कार, so you go to the thing comparison, you find point दे रहे कंपनी के एक एक चीज के पॉइंट, है ना. मतलब 5-सीटर है कि 4-सीटर है, इंजन कैसा है, सीटिंग कंफर्ट कैसा है, एसी है कि नहीं है, हीटर है कि नहीं है, सनरूफ है कि नहीं है. वहां से सस्ती कार के अंदर सनरूफ भी ढूंढ रहा है, पावर विंडो है कि नहीं, और यूएसबी है कि नहीं, एंड टच स्क्रीन है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, जब के पॉइंट है तो सबका 1-1 पॉइंट नहीं है. तो द कार विद द मैक्सिमम पॉइंट मींस मोस्ट एडवांस. बट कई बार ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता. बॉडी कलर सैंडल नहीं है तो क्या हुआ तो एक पॉइंट मिल गया उसको. मे बी दैट 5 सच पॉइंट्स मे बी जैसे कि भैया क्रोम ग्रिल 1 पॉइंट. क्रोम ग्रिल नहीं होगा तो आपकी कार की एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्या? क्रोम हैंडल नहीं होंगे तो आपकी कार की एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्या? या फॉग लैंप नहीं मिले वहां पे मतलब भैया बाजार में लग जाते हैं सस्ते में, जाकर लगा लेना, क्या फर्क पड़ रहा है. कोई वारंटी वाइड नहीं होगी, इससे कुछ और फर्क नहीं पड़ रहा. और वैसे भी हम जिस जगह पे रहते हैं साल में 2 बार फॉग आएगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो आप कई पॉइंट्स को ऐसे ही, और उसके बदले में क्या आपकी कोई कॉम्पिटिटर कार है उसके अंदर सारी चीजों के पॉइंट्स बढ़ गए और उसके पास आ गए 55 पॉइंट्स आपके पास रह गए 50 पॉइंट. बट ये 50 पॉइंट की कार के अंदर सारी बेसिक चीजें हैं विच रिक्वायर. अब क्रोम ग्रिल नहीं मिल रहा, क्रोम हैंडल नहीं मिल रहा, फॉग लैंप नहीं मिल रहा, या कुछ और चीज नहीं मिल रही. अच्छा मुझे बताओ पीछे की सीट में आर्म रेस्ट लगा के कितने जने बैठते हैं?
99.9% टाइम तो वो आर्मरेस्ट फोल्डेड ही रहती है और जबरदस्ती की चीज। तो हम इन चीजों के पॉइंट्स देख करके उसमें ज्यादा पॉइंट्स है। तो ये न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऐसा ही था। नंबर ऑफ टाइम जो है you were classifying and you found the classification in a bird and a human classification are same, point same आ गए। तो आप क्या बर्ड को ह्यूमन के कंपैरिजन में रख देंगे, क्या फ्रॉग को आप स्नेक के कंपैरिजन में रख देंगे, है ना? तो दिस वाज ऑफन मिसलीडिंग। इट्स अ गुड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया अच्छा है लेकिन मिसलीडिंग रहता है, इसलिए हमने इसको ध्यान ही नहीं दिया। टावर चक्कर ही नहीं रखना, है ना? ऐसे तो देखो जो वीजा वीजा के लिए अप्लाई करता वहां पे भी आती है, लेकिन वो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक करा। वो 1 and 0 वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ 1 and 0 ही है, 2 and 3 और 4 और 5 का नहीं है, 0 to 5 का रेंज नहीं है। तो आप किसी भी सर्विस उस पर बात करते हैं तो बोलता अच्छा सर आप हमको 0 to 5 कहाँ रेट करेंगे? हमने कहा 1 0। बोले क्यों करा सर आपने 0 क्यों दिया हमको? तो बोला आपकी भाषा अच्छी नहीं थी, आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मेरे को तो आपकी भाषा आती ही नहीं है। I talk in this language and you don't have any person who is speaking this language। तो कुछ भी क्या करके आप मैं उसको पॉइंट्स दे। तो 0 to 5 वाले में क्या होता है, फिर भी there is some clarity, there is some clarity। 0 and 1 all in one वाला सिस्टम चलता है, often is leading to misleading things, है ना? गलतियां करता है। तो देखते क्या लिखा है, न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी which is now easily carried out using computers is based on the observable character। Number of codes are assigned to all the characters, number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed, है ना? In which each character is given equal importance, ठीक है, एक पॉइंट सब। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर। सारी चीजें मिला लीजिए उसमें। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? आपको क्लासिफिकेशन सेलुलर लेवल पे करना है, सेलुलर लेवल, वेदर दे आर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अगर प्रोकैरियोट है तो क्या इसमें प्लास्टिड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता, और बहुत सारी चीजें। केमोटैक्सोनॉमी उससे भी एक कदम आगे। Certain organisms have a particular type of chemicals present in them, which may not be there in the other organism। यूकेलिप्टस एक खास तरह की खुशबू प्रोड्यूस करता है, पुदीना एक खास तरह की केमिकल इज देयर बिकॉज ऑफ दैट इट्स produces a smell। ठीक है, there are number of plants which are having importance of their certain type of chemicals present in them, which for which we are using them as a medicinal plant, which is not there in others। तो ऐसे जब बहुत ज्यादा क्लोज कंटेंट हो जाते हैं ना, तो फिर हम ये वाले बेसिस ले लेते हैं, टैक्सोनॉमी का बेस या केमो टैक्सोनॉमी, है ना? जब ज्यादा डिफरेंस नहीं, जैसे आपने बैक्टीरिया को देखा ना, ऑल द बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। तो हमने क्लासिफाई करना था, क्या ढूंढे, तो हमने कहा यार शेप का देख लेते। तो राउंड वो हमने कह दिया फोकाई, कोमा शेप को कहते हैं, वीब्रियो, है ना? रॉड शेप को हमने कह दिया बेसिलस एंड स्पाइरल। ये कोई क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन, लेकिन कुछ तो मिले भाई। एक और साइंटिस्ट आया, उनका नाम था ग्राम, उन्होंने एक तरीका इजाद किया, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। Some type of chemicals you have to treat and wash with the alcohol and see the color and all. If they are still able to retain their color, we call them as a gram positive। If they are not able to retain color, so we call them as gram negative। ये कोई बात होती है क्या? तो ये ऐसे क्लासिफिकेशन को हमने जगह जगहों पे यूज किया। जो क्लासिफिकेशन which we are seeing today are is not available, मतलब it's not that वो शुरू से ऐसे ही था, ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ऐसे ही अवेलेबल था, बट इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। somebody said something, somebody said something, ठीक है? So this is how we are reached the today's system of classification।
which is phylogenetic, which is five kingdom, which is natural classification, which include most of the characteristics. उसमें हम किसी जगह पे cytochemistry भी include कर रहे हैं. At certain level we are again including chemo taxonomy, है ना? तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया सर. प्लांट किंगडम का. प्लांट किसको कहेंगे? कौन बताएंगे मुझे? किसको कहेंगे प्लांट? मैं 1 मिनट के लिए शेयर करता हूँ and let me see who can answer me. Stop sharing. Yes. युविका is there, Dimple is there, Soham is there. चलो अटेंडेंस भी लग गई. अब बोलिए. What organism will be called as plants? So हम किसी को प्लांट कहने की आपने क्या सोचा? What are the criteria you will look in a plant? Dimple, किसी को प्लांट कहने के. अरे भाई, हाँ सोनम बोलो. अनम्यूट कर रखा है. हाँ म्यूट कर रखा है. ठीक है, 1 मिनट. You can unmute yourself now. Sir, anything which is hello. Hello. Say. Sir, can you hear me? Yes, I am able Sir, to. anything which is autotrophic, which can produce food for itself and it's non-motile. वो तो फिर ऑटोट्रॉपिक तो कुछ एल्गी भी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह. और थोड़ा सा परिवर्तन देखिए, एक पॉइंट पे नहीं हो सकता. एक पॉइंट वाला क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज ऑफन मिसलीडिंग. सो वी हैव टू इंक्लूड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. और क्या होंगे? Anybody else want to say? Dimple, Yuvika. प्लांट को प्लांट कहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गाना आपने किसने मान लिया? तुम पे इल्जाम है कि चोर को चोर क्यों कहते, है ना? लेकिन प्लांट को तो प्लांट कहने के कुछ कैरेक्टर होते हैं. प्लांट को प्लांट मतलब कह सकते हैं जब उसमें सेल वॉल हो, लेकिन वो किसकी हो? लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन. ठीक है. दूसरा क्या? उसके अंदर वैक्यूल्स और लार्ज साइज के. तीसरा क्या है? दे शुड बी मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर का हम यहाँ पे नहीं रखेंगे. यूनिसेलुलर तो सरका दिया यहाँ पे. इनटू फोटोसिंथेटिक एल्गी ने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन. कौन थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन? कौन थे? डाइटम, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनोइड्स. उनको अलग गांव बसा के दिया. बोले तुम वहां करोगे, हमने डिस्टर्ब मत करो, हमारे पाले में मत. तो उनको अलग से पाला बना करके दिया, है ना? और उनको कहा कि हमारा जो प्लांट है वो कैसा होना चाहिए? मल्टी सेलुलर होना चाहिए और ऑटोट्रोपिक होना चाहिए. एंड इट शुड हैव सेल वॉल. एंड सिंस इट इज ऑटोट्रोपिक तो इट शुड हैव क्या कहते हैं, सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, मे बी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, कुछ हो, कोई तो होगा उसमें, ज़ैंथोफिल, केराटिनॉइड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. देन उनके अंदर सेल वॉल जो होंगे वो थोड़े लार्ज होंगे. एंड दे have tissues on and organs, no system grade of organization. और उनके अंदर जो है दो तरह के टिश्यूज मिल रहे हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. और जो कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब ज्यादा चक्कर नहीं है. ये है लिमिटेड, मतलब प्लांट्स है लिमिटेड ऑप्शंस, है ना? तो पॉइंट्स के अगर से चल रहे होता है ना न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी, तो हम इनके पॉइंट्स पे बेस को जो है 60-70 तक ले जा पाते, हर चीज को ले जाते थे. नहीं आता, इतना नहीं आता. In compared to animals, they would have left far behind. Okay, तो प्लांट किंगडम पे हो गया. चलिए अब हम वापस अपनी बुक पे आ जाते हैं. Okay, so plant kingdom is further divided into, ये तो क्लासिफिकेशन ही नहीं दिया, कैसी किताबें आती है. प्लांट किंगडम का फर्दर क्लासिफिकेशन दो तरीकों से किया है. तो ओल्ड क्लासिफिकेशन, ओल्ड क्लासिफिकेशन, उसमें क्या किया हमने? उसमें प्लांटों में डाल दिया था ब्रैकियोफाइटा, TRACHE.
Trachophyta in which the tracheates, vessels, that is conductive tissue is there. And non-trachophyta. देखिए, वैसे ये इधर आएंगे तो ये सिंपल है, लेकिन नॉन पहले कैसे पढ़ सकते हैं जब तक इसको उसके बारे में नहीं पता, ठीक है? तो वैसे तो this will be here and this will be now. Non-trachophyta कौन से? जिसमें xylem and phloem tissues are absent. Trachophyta कौन है? जिसमें xylem and phloem tissue are present. अभी मैं इसको बता रहा हूँ, इसको ऐसे पढ़ लीजिए. ओके, तो non-trachophyta में क्या आएंगे? उसमें आएंगे LP and उसमें आएंगे bryophyta. LP की जगह हम thylophyta के ले सकते हैं. And tracheal system किसमें मिल रहा है? Pteridophyta, PTERI, POPHYT, Pteridophyta, and then Spermatophyta, SPERMATO, Spermatophyta. Wherever the word phyta is there, that stands for plant. For Spermatophyta हम दो में डिवाइड कर देते हैं, Gymnosperm and Angiosperm. Where the word sperm stand for seed. ठीक है? यहाँ sperm का मतलब क्या है? Seed. ये gamete नहीं, gamete वाला sperm नहीं है ये. तो ये पुराना क्लासिफिकेशन है ना? नया क्लासिफिकेशन क्या होगा? एकदम टेक्स्ट के टू रीडिंग चल रहा है ना? हमारा क्या न्यू रीडिंग? न्यू रीडिंग में क्या करेंगे? ट्रैकोफाइटा, थैलोफाइटा का निकाल दीजिए. अब आप इसको दे दीजिए नाम क्या? इसको नाम दे दीजिए that is on the basis of their reproductive structure. ठीक है? तो जो सीड नहीं बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? स्पूर बनाते हैं. तो उनका हम नाम दे देंगे क्रिप्टोगेन और इनको नाम दे देंगे फेनोलोगेन. फेनोलोगेन. क्रिप्टोगेन जो स्पूर प्रोड्यूस करते हैं. तीन आ गए थैलोफाइटा, THALOPHY. थैलोफाइटा के बाद क्या है? ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा का बेसिक क्लासिफिकेशन में वहां रखा हुआ मतलब इधर रखा हुआ तो उसको ऊपर ले जाना. ठीक है? तो ये इसकी जगह. और फेनोलोगेन के अंदर क्या है? फेनोलोगेन के अंदर कुल मिला करके वही है दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स आर those in which the seeds are uncovered. Gymno means naked. Gym में जाते हैं. Gym मतलब क्या? Naked. Gym मतलब naked क्या होता था? पुराने जमाने में अभी ओलंपिक्स हुए थे जापान. पुराने जमाने में ओलंपिक्स होते थे एथेंस में. तो वहाँ औरतों को पार्टिसिपेट करना मना था because men used to participate without any clothes on. तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या औरतें देखे नहीं आदमियों को उस अवस्था में. So they used to allow only men. Women were not allowed and that is why they were named gym and stuff. ठीक है? चलिए बताइए. आज की तारीख में आदमी से ज्यादा जिम में औरतें ही मिलती हैं. गुड डे. चल रहे हैं एंजॉय योर डे. बाकी कुछ पढ़ेंगे हम अगली क्लास में क्योंकि अब मेरे को इसको अपलोड भी करना. स्टॉप शेयरिंग. एंड मीटिंग.